Students, we will study about the chapter of English text, chapter number 8, The Hitchhiker. So let's start the remaining paragraph. Suddenly, my passenger was holding up a black leather belt in his hand. Ever seen this before? He asked. The belt had a brass buckle of an unusual design. Hey, I said, that's mine, isn't it? It is mine. Where did you get it? He grinned and waved the bell gently from side to side. Off the top of your trouser, of course, he said. You mean to took it off me while we have been driving along? I asked. Fable guessed it. He nodded, watching me all the time with those ratty eyes. He dropped the belt on his lap, and now all at once there was a brown shoelace dangling from his fingers. And what about this then? He exclaimed, waving the shoelace. अब अचानक से जो पैसेंजर होता है वो जो है उसने पकड़ रखी थी ब्लैक बेल्ट और अपने हाथ में, तो वो दिखाता है, वो पूछता है अरे कि ये जो ब्लैक बेल्ट है ब्रास बकल की, ये बहुत ही अलग सा डिज़ाइन है। फिर वो बोलता है अरे ये तो मेरी है, तुम्हें ये कहाँ से मिली? उसने कहा कि ये जो बेल्ट है वो साइड से, क्या तुमने मेरे ट्राउज़र से ही उतारी है? उसने कहा हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हारा मतलब है कि तुमने, मैं ड्राइविंग कर रहा था, तुमने आराम से इसे उतार लिया? उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो देख रहा था ऑल टाइम, उसे बहुत ही रेटी आइज के साथ में देख रहा था। ही ड्रॉप द बेल्ट ऑन हिज लैप एंड नाउ द all at once there was a brown shoelace dangling from his finger. अब वो जो है उसे जब देखता रहता तो उसने क्या, उसके बेल्ट जो लैप में लगी हुई थी वो उसने निकाल ली। उसके बाद जो है एक एक करके वो सब चीज़ें निकाला था। उसके शू लेस भी अपने फिंगर्स से निकाल लिए, उसको पता ही नहीं चला। उसके चारों ओर ऐसा घुमा घुमा के उसे निकाल लिया। आई ग्लैंस डाउन एट माई शू. The lace of one of them was missing. Good grief, I said. How did you do that? You have got fantastic fingers. Exactly right, he cried. He said back and smiled. He knew he had greatly impressed me with those two tricks, and this made him very happy. तो जब वो देखता है कि देखो मेरे शू लेस भी मिसिंग हैं दोनों, और जब वो बोलता है, उसने कहा वाह तुमने ये कैसे किया, तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छी फिंगर्स है। उसने कहा हाँ बिल्कुल सही। वो मुस्कुराता है और बोलता है कि भाई तुम्हारी जो फिंगर्स हैं या फिर इस ट्रिक है, इस ट्रिक ने मुझे तो बहुत ही इम्प्रेस कर दिया, मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। और वो बहुत खुश होता है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ लेट, ही सेड. व्हाट्स टाइम इज इट? द हिस्ड up my sleeves to look at the watch on my wrist. It wasn't there. I looked at the man. He looked back at me, grinning. You have taken that too, I said. He held out his hand, and there was my watch laying in his palm. He placed the watch carefully on the leather tray in front of him. I wouldn't nick anything from you, he said. You are my pal. You are giving me a lift. I am glad to hear it, I said. All I am doing is answering your question, he went on. You ask me what I did for a living, and I am showing you. What else have you got of mine? अब वो जो है उसकी जो स्लीव्स को देखता है, उसकी स्लीव्स जो रिस्ट वॉच थी उस पर, तो वो देखता है उसे, और थोड़ी देर में वो उसके हाथ से निकाल लेता है उसे बहुत ही केयरफुली, उसे पता ही नहीं चलता है। तो वो देखता है जब, अरे ये तो मेरी है, यू गिविंग मी अ लिफ्ट, जब मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी तभी उसने वो ले ली थी। तो उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब वो उसे देता है। फिर बाद में वो उससे पूछता है कि भाई तुमने और क्या चीज़ें हैं जो मेरी ली हैं। He smiled again and now started from the pocket of his jacket one thing after another that belonged to me: my driving license, a key ring with 4 keys on it, some the pound notes, a letter from my publisher, my diary, a stubby old pencil, and last of all, a beautiful old sapphire ring with pearls around it belonging to my wife. I was taking the ring up to the jeweler in London because one of the pearls was missing. So you are a pickpocket, I said. I don't like the word, he answered. It's a vulgar word. Pickpockets are coarse and vulgar people. They lift money from blind old ladies. What do you call yourself then? Me, I am a fingersmith. I am a professional fingersmith. He spoke the word soul money and proudly as though
he were telling me he was the Archbishop of Canterbury. वो मुस्कुराता है और अपनी जैकेट की जो उसकी बहुत सारी पॉकेट्स थी उसमें से एक एक करके सारी चीज़ें निकालना शुरू हो जाता है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी की रिंग, 4 कीज़ उसमें लगी हुई थी, पाउंड नोट, लेटर जो है पब्लिशर का, और डायरी, स्टबी ओल्ड पेंसिल, ब्यूटीफुल जो एक रिंग थी जिसमें एक बहुत ही सैफियर पर्ल्स लगा हुआ था और वो अपनी वाइफ के लिए लेने वाला था जिसका एक हीरा मिसिंग था। तो ये सारी चीज़ें वो अपनी पॉकेट, तो उसने कहा अच्छा तो तुम पिक पॉकेट हो, यानी कि जेब कतरे हो। तो उसने कहा ये शब्द मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसने कहा फिर बताओ तुम, उसने कहा ये शब्द तो बहुत ही वल्गर है और इसमें तो मनी यानी पैसे वगैरह जो लेते हैं वो उनको कहा जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। तो उसने कहा ठीक है तुम बताओ फिर तुम अपने आप को क्या कहना पसंद करते हो। तो उसने कहा मैं फिंगर स्मिथ हूँ और मैं जो है प्रोफेशनल फिंगर स्मिथ हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा तरीके से चीज़ों को लेता हूँ, तो मेरे को अपने इस काम पर बहुत ज़्यादा गर्व है। और उसने बताया कि वो जो है एक आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी में बताता है उसके बारे में अपने आप को कि मैं वो उनसे इंस्पायर्ड है, कि वो ही आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी है। तो आई हैव नेवर heard the word before, I said. Did you invent it? Of course, I didn't invent it, he replied. It's the name given to them who's risen to the very top of the profession. You have heard of goldsmith and silversmith, of instance. They are expert with the gold and silver. I'm expert with my fingers, so I'm a fingersmith. तो उसने कहा मैंने कभी शब्द के बारे में नहीं सुना, तो क्या तुमने खुद से इसका आविष्कार किया है। उसने कहा हाँ मैंने आविष्कार किया है। तो तुमने काफ़ी सारे व्यवसाय के बारे में सुना होगा, जैसे कि सुनार होते हैं या गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ होते हैं, उसी तरीके से मैं भी एक्सपर्ट हूँ। तो जैसे वो सोने और चांदी के सिल्वर में एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे ही मैं भी अपनी फिंगर्स का स्मिथ मतलब जो है उसमें एक्सपर्ट हूँ। तो इसीलिए मैं हूँ फिंगर स्मिथ, आई एम अ फिंगर स्मिथ। And race, and that's why you go to the races. Race meetings are good, he said. You just stand around after the race watching for the lucky ones to queue up and draw their money. And when you see someone collecting a big bundle of notes, you simply follow after him and else yourself. But don't get me wrong, I never takes nothing from a loser nor from poor people neither. That's a very thoughtful of you, I said. How often do you get caught? Caught? He cried, disgusted. Me get caught? It's only a pickpockets get caught. Fingersmith never. Listen, I could take the false teeth out of your mouth if I wanted to, and you wouldn't even catch me. तो वो बोलता है कि तुम क्यों रेस में जाते हो। उसने कहा मैं रेस, मुझे अच्छी होती है रेस, और मैं केवल वहाँ पर खड़ा रहता हूँ, देखता रहता हूँ लाइन में लकी वंस को जो वहाँ पर पैसा बनाते हैं और इकट्ठा करते हैं बंडल नोट्स के। तो ये गलत है, डोंट गेट मी रॉन्ग। तो मुझे तुम रॉन्ग नहीं कह सकते क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं करता हूँ और मैं लूज़र भी नहीं हूँ। मैंने बहुत सोचा है तुम्हारे बारे में। और उसने कहा कि हाँ कि हम कहीं पकड़े ना जाएं, वो ऐसा सोचता है। उसने कहा कॉट, तो अब हम पकड़े जाने वाले हैं, तो लेकिन पिक पॉकेट्स जो है जेब कतरा, वो बोलता है कि नहीं, हम फिंगर स्मिथ बोलता है नहीं अब हम नहीं पकड़े जाएंगे। तो उसने कहा कि हम पकड़े बिल्कुल नहीं जाएंगे और मेरे पास जो है नकली दांत हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ और तुम पकड़ने से बच सकते हो। उसने कहा मेरे पास तो नहीं है और मुझे नहीं चाहिए, वो ऐसा बोलता है। उसने कहा मुझे पता था तुम्हें नहीं चाहिए। I believed him. Those long, slim fingers of his seemed able to do anything. Who drove on for a while without talking. That the policeman's going to check up on your pretty trolley. I said, doesn't that worry you a bit? Nobody is checking up on me, he said. उसने कहा कि मुझे विश्वास है तुम्हारी इन लंबी फिंगर्स पर, तो कुछ वो ज़रूर करेंगी। जब इसके बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो वो पुलिसमैन जो है हम उसके लिए
और जब पुलिसमैन हमारी चेकिंग जब आएगा चेकिंग का टाइम तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा कि कोई भी हमारी चेकिंग नहीं करेगा और ऑफ कोर्स दे आर ही इज़ गॉट योर नेम एंड एड्रेस रिटन डाउन मोस्ट केयरफुली इन हिज ब्लैक बुक। द मैन गेव मी अनदर ऑफ हिज स्लाई रेटी लिटिल स्माइल। और उसने कहा हाँ हाँ मुझे पता है कि उसने हमारा नाम वगैरह सब ब्लैक कलर की डायरी में लिख लिया था, तो वो साइड में जो है थोड़ी सी स्माइल करता है। हाँ, he said, so as but I will bet he ain't got it all written down in his memory as well. I have never known a copper you did yet with a decent memory. Some of them can't even remember their own names. What's memory got to do with it? I ask. It's written down in his book, isn't it? तो वो कहता है हाँ मुझे पता है कि वो सारा कुछ जो है वो एक डायरी में पुलिसमैन ने नोटिस किया था, वो इसीलिए मैं नोटिस करता ताकि उन्हें याद रहे ये सब। तो उसने कहा हाँ जो उनकी मेमोरी है वो अब कैसे उनको याद रहेगी, तो वो बताता है क्योंकि बुक तो इधर है। Yes, Governor, it is, but the trouble is, he lost the book. He's lost both books, the ones with my name in it and one with yours in the long, delicate fingers of his right hand. The man was holding up the two books he had taken from the policeman's pocket. It's the easiest job I ever done, he announced proudly. उसने कहा ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, दोनों बुक मेरे पास है और ये काम मेरे लिए बहुत ही आसान था मेरी फिंगर्स के लिए, और हमने जीत हासिल कर ली, ये मेरे लिए बहुत ही इजी वर्क था। वो बहुत ही प्राउड के साथ कहता है। आई नियरली स्वेप्ट द कार इनटू अ मिल्क ट्रक। आई वाज सो एक्साइटेड। द कॉपर्स गॉट नथिंग ऑन आइदर ऑफ अस नाउ, ही सेड। यू आर अ जीनियस, आई क्राइड। तो वो बोलता है कि भाई, तो अपनी गाड़ी को वो बहुत ही आराम से चलाता है, बहुत स्मूथली, और बहुत एक्साइटेड था वो। और वो उससे कहता है तुम तो बहुत ही जीनियस हो, चिल्लाता है, बहुत एक्साइटेड होता है। ही इज़ गॉट नो नेम्स, नो एड्रेस, नो कार नंबर, नो नथिंग, ही सेड। उसने कहा अब हमारा कुछ भी नहीं है, कोई नाम, एड्रेस, कार नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है। यू आर ब्रिलियंट, तुम तो बहुत ही ब्रिलियंट हो। तो वो उसे जो है ब्रिलियंट कहता है, उसके टैलेंट की कद्र करता है। I think you did better pull off his main road as soon as possible, he said. Then we did better build a little bonfire and burn this book. तो वो बोलता है कि अब हमें जो है वहाँ से मेन रोड से जाकर हमें जितनी जल्दी हो सके इस बुक को जला देना चाहिए। You are a fantastic fellow, I exclaimed. Thank you, Governor, he said. It's always nice to be appreciated. तो वो उसको बोलता है कि धन्यवाद, तुमने जो मेरे को इस मुसीबत से बचाया है, और मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारी सराहना करूँगा और तुम्हें धन्यवाद करता हूँ, और तुम्हारे इस काम की सराहना करता हूँ। जो तुम्हारे पास ये टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा है, और तुम अपने फिंगर्स का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हो।